Hi, good morning, all of you. Today we are going to read your second chapter, Writing and City Life. In this chapter, we are studying about Mesopotamian culture. We are also studying about their city and trading life. Today we will read about the trading town in pastoral zone. This is very important topic. In my previous video, I have explained little bit about this paragraph, first and second. Today, before start this paragraph, I would like to give you summary of two paragraphs. I have discussed that in the Mesopotamian culture, the one city named the royal capital of Mari, it was flourished during 2000 BC, where we have seen that it was developed in proper form. There were the pastoral zone area and there were agriculture area. Euphrates River and their territories provide the water facilities for their agricultures. And particular that region we have seen that very strange that two industry develop agricultures, I mean to say that peasants, and herders, I mean to say the pastoralists. Both live there because the grazing land is so much and agriculture area is also developed due to Euphrates River. Both are interconnected with each other. हमने इसके बारे में पढ़ा. हमने ये भी देखा कि फिर वहाँ पे कुछ झगड़े हुए. Sometimes with behalf of evidence, we have discussed about that the conflict between the peasants and herders. क्यों हुए थे झगड़े में हमने बात की थी कि झगड़ों का कारण था उसके पीछे उन दो चीज़ों के लिए, जिसमें कहा गया था कि कभी कभी ये जो लोग थे पास्टलिस्ट थे वो अपनी आवश्यकताओं के लिए जब अपनी वस्तुओं को बेचते थे, पनीर, चमड़े और उनके बने हुए सामान के बदले वो वहाँ से खाने की चीज़ें, अनाज और धातुएं के उपकरण खरीदते थे. लेकिन ये जो बिजनेस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चल रहा था कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट के रूप में धारण कर लेता था, रूप ले लेता था, आपसी विवाद का रूप बदल जाता था. और ये तभी होता था जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिगड़ती थी. कभी कभी हॉर्डर्स अपने जानवरों को किसानों के बोए हुए क्षेत्र से लेके निकाल देते थे, किसानों की फसल लगे हुए खेतों से निकालते थे, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती थी और आपस में दोनों के झगड़े होते थे. और कभी कभी तो किसानों की तरफ से भी था कि उनके जानवरों को पानी पीने से जाने के लिए रोक देते थे, तो इससे दोनों के बीच झगड़े हुए. हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था पुराने वीडियो में. आज हम यहाँ से देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा. थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री द नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ द वेस्टर्न डिजर्ट filtered into the prosperous agricultural heartland. Shepherds would bring their flock into the sown area in the summer. Such group would come in herdery. The harvest laborers, our hired soldiers, occasionally became prosperous and settled down. A few gained the power, established their own rule. These included the Akkadians, Amorites, Assyrians, Aramaean. You will read more about rulers from pastoral societies in theme 5th. The king of Mari were Amorites, whose dress different from that of the original inhabitants, and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, god of the steppe. Mesopotamian society and culture were thus open to different people and culture, and the vitality of the civilization was perhaps due to this intermixture.
इट मीन्स आथर वांट टू इन्फॉर्म अबाउट दैट मेसोपोटामियन हिस्ट्री भी यदि बात करें तो वहाँ की कृषि से समृद्ध मुख्य भूमि में इन हर्डस और हर्डस ग्रुप के बारे में चर्चा किया गया है। ये हर्डस ग्रुप्स के साथ वेस्ट डिजर्टेड एरिया में आते थे, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र से आते थे। ये सेफर्ड गर्मियों में, ये जो गडेरिए थे, ये सेफर्ड्स थे, ये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां लेके आते थे। ये समूह सेफर्ड का फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और यहाँ से समृद्ध होकर कभी कभी यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करके शक्ति भी प्राप्त कर ली और खानाबदोश लोग, ये जो हर्डर्स थे, नोमैडिक पीपुल्स थे, they wandered hither and thither, they have no proper particular place, they established himself particular area because this is the fruitful for him, उनके लिए बहुत उपयोगी था। तो उन्होंने अपना ये नोमैडिक लाइफ को छोड़ के, ये नोमैड जो अक्कादियन, एमोराइट्स, असीरियन, आर्मेनियन जाति के लोग थे, मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे, ये लोगों ने अपने को वहाँ क्या किया, सेटल्ड कर लिया। ये सारे नोमैडिक्स थे, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, एमोराइट्स, असीरियन, आर्मेनियन, अक्कादियन, ये जितने भी लोग थे वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित किए और एक मजबूत स्थिति में आए। उनका राजा जो एमोराइट्स था वो खुद भी, वहाँ का जो राजा था वो एमोराइट्स ग्रुप का था, ट्राइबल पीपल था, नोमैडिक था। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। ऑब्वियसली वो बाहर से थे, आउटसाइडर्स थे, तो वहाँ पे जो लोग थे, नेटिव पीपल्स थे, उनसे उनका कल्चर थोड़ा अलग रहा होगा, ड्रेस उनके अलग रहे होंगे। इवन केवल ड्रेस ही उनके अलग नहीं थे बल्कि उनके कल्चर भी अलग थे। जैसे मारी के राजा एमोराइट्स ने जो वहाँ के ड्रेस डिजाइनिंग थी वहाँ के लोगों की थी, वो मूल निवासियों से बिल्कुल भिन्न थी। उन मेसोपोटामियन देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि उन्होंने एक नए देवता डैगन को ले आए। डैगन जो देवता थे, ये मारी नगर में उनके लिए एक मंदिर बनवाया और इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज, वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली रहती थी। संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। इट मीन्स ऑथर वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट कि कई तरह की संस्कृतियाँ आई और वहाँ पे इकट्ठी हुई। कई संस्कृतियों के मिलने से नगर का विकास हुआ। कई जो पहले हर्डर्स थे, जो पहले व्यापारी थे, उन लोगों ने भी अपने को स्टेब्लिश किया और स्टेब्लिश करने के बाद डेवलपमेंट किया। ये चीज़ें वहाँ पे हमें कल्चर में दिख रही है। इसलिए उनके कल्चर अलग थे वहाँ के मूल नेटिव लोगों से। उनके देवी देवता उर और नाना, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, चंद्र देवता और प्रेम और युद्ध की देवी थी। जो बाहर से लोग आए, एमोराइट्स, असीरियन, अक्कादियन, जो हर्डर्स थे, जो नोमैड्स थे, इन लोगों के कल्चर में देवी देवता इनके अलग थे। स्टेपी प्रदेश के देवता डैगन को उन्होंने स्टेब्लिश किया। मारी में जब इन्होंने सत्ता प्राप्त की, जीता, तो उन्होंने उसके लिए एक मंदिर बनवाया अलग से। अपने ड्रेस डिजाइन, अपने कल्चर, अपने मंदिर, अपने लैंग्वेज से ये वहाँ के मूल निवासियों से अलग थे। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, अब सब एक साथ रह रहे थे मारी सिटी में। मिक्स कल्चर का अस्तित्व हमें यहाँ पे एकदम क्लियर दिखने लगता है, इसका विकास दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद की चरण बदलते हैं, कुछ बदलाव आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके जो कहता है क्या बदलाव आती है। तो कहता है वहाँ पे द किंग ऑफ मारी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट। Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom, but they were watched. The camps of herders are mentioned frequently in letter between king and officials. In one letter, an officer written to the king that he has been seeing frequent fire signal at night, sent by one camp to another
and suspect that a raid or an attack is being planned. Located on the Euphrates in the prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine, and various other goods that were carried in boats along the Euphrates between the south and the mineral rich upland of Turkey, Syria, and Lebanon. Mari is a good example of urban culture prospering on trade. Boats carrying grinding stone, wood, and wine and oil jars would stop at Mari on their way to the southern cities. Officers of this town would go abroad, inspect the cargo. A single river boat could hold 300 wine jars and levy a charge of about one-tenth the value of the goods before allowing the boats continue downstream. Barley came in special grain boats. Most important tablet referred to copper from Alhes, copper from Alhesia, the island of the Cyprus, known for the copper and tin, was also on items of trade, as bronze was the main industrial material for tool and weapons. This trade was of great importance. Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. In this topic, in this paragraph, I want to inform you about the condition of herders. Herders were look minutely about the king. बहुत ध्यान से देखा जाता था. Kings, they were vigilant. कि मारी के राजाओं को सदा सतर्क सावधान रहना पड़ता था. क्यों? क्योंकि विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी, क्योंकि हमने पहले इसको देखा था किस तरीके से वो फसलों को बर्बाद करते थे और ताकत बढ़ने पे वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते थे. दोनों स्थितियों में एक तरीके से क्या थी, एक तरीके से व्यवस्था अपने में सेंटर को अनस्टेबल करने के लिए थी. इसलिए हर्डर्स के ऊपर बड़ा ही विजिलेंट रहते थे वहाँ के किंग. इसलिए वहाँ पे उनको आने को तो छूट थी, घूमने की भी छूट थी, और लेकिन उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी कहीं वो ऐसे एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों जो स्टेट के अगेंस्ट हो. राजा तथा पदाधिकारी जो ऑफिशियल्स थे, किंग्स थे, उनके बीच निगोशिएशन के लिए पत्र व्यवहार होते थे. पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुपालकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है. एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उससे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही. इट मीन्स एक क्लू मिल रहा है. जो निगोशिएशन हो रहे हैं ऑफिशियल्स और राजा के बीच, उसमें एक कर्मचारी अधिकारी ये बात राजा को लिख रहा है कि हमने देखा कि एक कैंप से दूसरे कैंप में लोग आग से इशारा कर रहे थे. कहीं ये हमले की सूचना तो नहीं, कहीं ये राज्य के ऊपर अटैक की बात तो नहीं. इस बात का उल्लेख करता है. फिर कहता है लोकेट ऑन द यूफ्रेटस इन प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड. अब कह रहा है कि यूफ्रेटस रिवर, अभी तक हमने पढ़ा कि यूफ्रेटस रिवर से सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदे होते थे, लेकिन इट डज नेवर मीन दैट ओनली यूफ्रेटस रिवर फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द ड्रेनेज सिस्टम, फॉर द वाटर फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर. पानी की सुविधा खेती के लिए सिर्फ यूफ्रेटस होती थी, और यूफ्रेटस सिर्फ इसीलिए नहीं, यूफ्रेटस का अलग भी उपयोग था. ये प्राइम पोजीशन में थी ट्रेड के लिए.
मैंने आपसे कहा था, अगर आपने याद होगा मेरे प्रीवियस वीडियो को, तो वहाँ मैंने बात की थी कि नहरों और नदियों के माध्यम से व्यापार सस्ता था, सुरक्षित था। जानवरों की पीठ पिलात किए जाने से खर्च ज़्यादा लगते थे, इसलिए लोगों ने नदियों के माध्यम से नेचुरल हवाओं के द्वारा व्यापार करने की प्रथा शुरू की। तो कह रहा है ये प्राइम पोजीशन में थी यूफ्रेटस। मारीनगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, शराब और कई किस्मों के माल नाव के जरिए यूफ्रेटस रिवर्स के थ्रू साउथ टर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाए जाते थे। मारीनगर व्यापार के बल पर समृद्ध एवं शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों की घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे, इट मीन्स ऑयल जार, को ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और वहाँ उसकी जांच भी किया करते थे। उस पे लदे हुए सामानों को भली प्रकार से देखकर समझ के उन पे उनका जांच परख की जाती थी। एक नदी में 300 वाइन जार रखे गए थे और उससे आगे बढ़ने की फिर वो इजाज़त दे देते थे जांच परखने के बाद। इससे पहले उसमें लदे माल की कीमत लगभग 10% प्रभाव वसूल करते थे। जांच इसलिए करते थे कि उस नाव में कितना लदा हुआ है, और नाव में लदे हुए वस्तुओं की कुल कीमत का 10% वो टैक्स के रूप में वसूल करते थे, रुकने की एवज में, कस्टम टैक्स के रूप में। ये सिटी पूरी करती थी। इट मीन्स व्यापारियों का अपना एक महत्व था राज्य को टैक्सेशन कलेक्ट करने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं, जो कुछ टेबलेट्स मिले, कुछ एविडेंस मिले आर्कियोलॉजिकल, उसमें साइप्रस के द्वीप अलासिया की बात कर रहा है। अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। कॉपर का, अलासिया से कॉपर जो आ रही थी, ये अलासिया द्वीप उन दिनों तांबे के व्यापार के लिए बड़ा फेमस था। तांबे के बने औजार और हथियार के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री केंद्र था ये अलासिया। तांबा और टीन के व्यापार के लिए तो मशहूर था। यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था। कांसा औजार बनाने, हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री के रूप में कांसा चाहिए। कांसे के लिए टीन और तांबे की जरूरत पड़ती है। जो कांसा होता है, इट मीन्स ब्रोंज, was the main industrial material of tools and weapons. Bronze is made by copper and tin. In Alasya, that island was Cyprus was famous for copper and tin. So that's why their role was very important during that time. रोल बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे व्यापार करने के लिए सभी लोग आकर्षित होते थे। कांसा से, ब्रोंज से हथियार बनाने और सारे टूल्स बनाने में और सारे औद्योगिक सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता था। इसलिए व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये ब्रोंज था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य, जो मारी स्टेट्स था, उस सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वो अत्यंत ही यूनिक था, महत्वपूर्ण था, बड़ा था। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम एक टॉपिक को और डिस्कस करना चाहेंगे। वो टॉपिक आपका पीछे है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है, द प्लेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिमरलिन। लेकिन इसके पहले आप अगर मैप को देखें तो कुछ मैप में मारी और किंग जिमरलिन के बारे में दिखाया गया है। आप ध्यान से देखिए। ऑडियंस हॉल, द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिमरलिन 810 to 1760 BC। ऑडियंस हॉल 132 फीट, आउटर कोर्ट 131, इनर कोर्ट 106 मीटर, थ्रोन रूम जहाँ पे कोर्ट लगती थी
यहाँ पे देखिए एंट्रेंस गेट, नगर में प्रवेश कर रास्ता, और वॉल चारों तरफ से ये फोर्टिफाइड था, ये जिमरलिम का पैलेस। आपने मारी के पूरे फोर्टिफिकेशन की एक मैप मेजरमेंट आपने चेक किया यहाँ मैप के माध्यम से, एक्सक्यूशन में मिले गए एविडेंस के आधार पर इस मैप को यहाँ दिखाया गया है। अब बात करते हैं कंट्री यार्ड्स की। दो और पिक दिखाए गए हैं, ध्यान से देखिए, आप समझ सकते हैं। और एक स्क्राइब्स ऑफिसर्स विद द बेंचेज एंड क्ले बीन्स फॉर स्टोरिंग टेबलेट्स। आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कमरा दिखाया गया, इसमें आपको देखने से आप लिपिक का ये लगता है ऑफिस है। इस ऑफिस में बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी की पट्टिकाएँ टेबलेट्स रखी गई। ऐसा लगता है यहाँ पे लोग आते होंगे। इस पिक में ये ऑफिस की तरह दिख रहा है, देखिए ध्यान से, अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको ऑफिस की तरह ये दिखेगा। इट्स लुक लाइक ऑफिस। यू कैन एज्यूम दैट कि द पीपल्स assembled particular that place and they used to do work for their king, अपने राजा के लिए काम करते रहे होंगे। फिर एक और पिक देखिए, आप पिक के माध्यम से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे आपको एक पिक दिखाई गई ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिए, किचन, किचन में चूल्हे दिख रहे हैं आपको, और पेबल से उसको कितने अच्छे तरीके से उसको सही किया गया है। आपको लेबोरेटरी एंड बाथ भी दिख रहा है, मतलब इट मीन शौचालय और स्नान गृह की डिटेल व्यवस्था की यहाँ दिख रही है। फिर आप वर्कशॉप एंड किचन देखिए इस छोटे से पिक में, वर्कशॉप एंड किचन और रॉयल स्वीट्स, कमरे छोटे छोटे बड़े बड़े, ये सारी डिटेल्स आपको मारी कल्चर में दिख रही है। पेंटिंग ऑन वॉल, दीवारों पे जो पेंटिंग की गई थी उनकी देखिए कितनी अच्छे से इन लोगों ने पेंटिंग किया। इट मीन्स दे हैव द गुड एक्सप्रेशन पावर, विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग दे कैन एक्सप्रेस हिम प्रॉपरली। नृत्य का, डांस का, इस तमाम सारी चीज़ों को इन लोगों ने एक्सप्रेस किया है। इसके आधार पे अब बात करेंगे हम जिमरलिम की, जो मारी का किंग था। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जिमरलिम कौन था, जिमरलिम के बारे में बताएं। तो जिमरलिम के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यू हैव टू अवेयर ऑफ द जिमरलिम बिकॉज द वेरियस टाइम इन योर एग्जाम क्वेश्चन अराइज बाय द एग्जामिनर्स, आपसे पूछे गए हैं जिमरलिम, और आप चूँकि आप हर टॉपिक्स को ध्यान से नहीं देखते, इसलिए आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस, ये तो है ही नहीं, पढ़ा नहीं। इसलिए हियर आई ट्राई टू teach you all the topics which is important where the question arise in your exam. So the place of Jimarlim, let's start this topic. Jimarlim, the great place of Mari, was the residence of the royal family, the hub of administration and a place of production, especially of precious metal ornaments. It was so famous in its time that a minor king came from North Syria just to see it, carrying with him a letter of introduction from our royal friends of the king of Mari. Jimarlim daily list reveal that huge quantity of food were presented each day for the king's table: flour, bread, meat, fish, fruit, beer and wine. He probably ate in the company of many others in the around the country yard 106 paved white. You will notice from the plan that the place had the only one entrance, one the north. The large open country yards, such as 131, were beautifully paved. The king would have received
foreign dignitaries and his own people in 132, a room with wall painting that would have awed that visitors. The place was a sprawling sculpture with 260 rooms and covered an area of 2.4 hectares. It means, having read this paragraph, we have clear information about the palace of Mari of Zimmerlim. जिमरलिम कौन था? जिमरलिम का मारी स्थित राजमहल कैसा था? इन चीज़ों पे क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में। अगर आप इन चीज़ों को समझें, देखें, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऑथर कहना चाहता है कि द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ मारी वाज देयर रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही साथ प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषण का निर्माण का प्रमुख केंद्र भी था। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ मारी वाज not only the residence of the royal family, but also it was center of administration, production, especially of precious metal ornaments. वहाँ पे इन चीज़ों का निर्माण किया जाता था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ था, या अपना इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तर सीरिया का एक छोटा राजा आया जिमरलिम के राजमहल को देखने के लिए। उसकी ख्याति दूर दराज के क्षेत्रों में फैली। सीरिया का एक छोटा राजा उसको देखने के लिए आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर आया था। वो इतना उत्सुक था इस नगर को देखने, इस महल को देखने के लिए, इसलिए सीरिया से उसके पास आया। कहता है कि द माइनर किंग केम फ्रॉम नॉर्थ सीरिया जस्ट टू सी इट, कैरिंग विथ हिम ए लेटर of introduction from our royal friends of king of Mari. मारी के राजा का एक दोस्त था, उसका पत्र लेके आया कि मुझे दिखाया जाए। और ये चीज़ें ये दिखाती है कि जिमरलिम का जो मारी राज पैलेस था बहुत ही भव्य रहा होगा। दैनिक सूचियों का भी पता चलता है, लिस्ट की जानकारी होती है। एविडेंस में जो चीज़ें मिली उसके आधार पे हमने देखा कि वहाँ पे जो डेली लिस्ट रिवील दैट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड वर प्रेजेंटेड ईच डे फॉर द किंग टेबल। डेली राजा के लिए खाने के लिए उसकी मेज पे बहुत लंबी खाने की सूची थी, जिसके आधार पे मालूम चलता है कि राजा को खाने के लिए उसके टेबल पे बहुत सारे खाद्य पदार्थ रखे जाते थे। जिसमें क्या क्या होता है? कहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या? कहता है फ्लोर आटा, ब्रेड रोटी, मीट मांस, फिश मछली, फ्रूट फल, बियर इट मीन्स बियर एंड वाइन शराब, इतनी सारी चीज़ें। वह संभवतः अपने साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बकायदा भोजन करता था। अगर आप मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना था। अगर आप मैप देखें, यहाँ पे मैंने आपको मैप दिखाया, मैंने आपसे कहा था कि ये मैप को ध्यान दीजिए। और यहाँ इंट्रेंस गेट, अब देखिए दिस इज इंट्रेंस गेट, एक ही इंट्रेंस गेट है। और इस इंट्रेंस गेट्स में ये दरवाज़ा रास्ता एक ही है। आपको पता लगेगा कि राजमहल में सिर्फ एक प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। इसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से बने थे। इसका जो गेट था वो काफ़ी भव्य था, बड़ा बनाया गया था। कहता है कि जो दरवाजे थे खूब सुंदर तरीके से उसको सुसज्जित किया गया था, सजाया गया था सुंदर पत्थरों के द्वारा। राजा विदेशी अतिथियों, अपने जो फॉरेन उनके गेस्ट थे, अपने प्रमुख लोगों से, अब रूम नंबर 132, आप रूम नंबर 132 इसमें देखिए, आपको दिख जाएगा। रूम नंबर 132 में मिलता था, रूम नंबर 130 ऑडियंस हॉल में मिलता था। राजा अपने जो गेस्ट आते थे उनको
ये ऑडियंस हॉल में उनसे मिलता था, रूम नंबर 132 में। कहता जहाँ के जो पेंटिंग्स हैं, भित्ति चित्र हैं, उनको देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ। इतनी सुंदर पेंटिंग्स दीवारों पर लगाई गई थी जो लोगों को बरबस अट्रैक्ट करती थी। राजमहल 2.4 देखिए, राजमहल 2.4 में दिखाया है कि आप थोड़ा और आगे चलिए, आपको यहाँ पे पिक में दिख जाएगा राजमहल 2.4, रॉयल पैलेस 2.4। यहाँ देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे हेक्टेयर, राजमहल 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में थे और एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें करीब 260 छोटे छोटे कमरे थे। कह रहा है इसमें रूम काफ़ी थे, रूम की संख्या 260 थी। ये पूरा एरिया 2.4 हेक्टेयर में फैला था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिमरलिम का पूरा इलाका काफ़ी डेवलप्ड और बड़े पैमाने पे था। तो आज हमने इस पास्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और जिमरलिम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेसोपोटामियन कल्चर्स एंड देयर इम्पैक्ट। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।